नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। जीएसटी 80 का वेबसाइट लॉन्च हो गया है तो और उस वेबसाइट में बहुत सारे एडवाइजरीज भी हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। कैसे रिटर्न अपील फाइल होगा जीएसटी 80 में, वो भी पढ़ लेते हैं। और स्टैगर्ड मैनर में वो क्या क्या कह रहे हैं कि स्टैगर्ड मैनर में अपील फाइल होगा, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले वेबसाइट में चलता हूं। ये वेबसाइट है जीएसटी 80 का efiling.gst.gov.in। इसी में ई फाइलिंग यूजर मैनुअल है, डाउनलोड। कुछ वीडियोस देखना चाहते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन ये सब अपने आप को करवाएंगे, टैक्स पेयर कैसे करेगा, कंसल्टेंट कैसे करेगा रजिस्ट्रेशन, वो सारा कुछ है। एक ई फाइलिंग टेम्पलेट है एक्सेल का, वो देखेंगे। एक कुछ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर एंड एडवाइजरी है, वो देखेंगे। इसके नीचे कहीं जा नहीं रहा, बस यहीं पर वेबसाइट रुक जा रही है। किसी को अपीलेट ऑर्डर का एआरएन सीआरएन है क्या? नीचे वाला नंबर है ना, एडी करके आ रहा है। 71RNTW आ गया। वेरीफाइड कंफर्म अबाउट अस हेल्प सेंटर। अरे ये वापस चला गया। कंफर्म रजिस्टर टैक्स पेयर। तो यहाँ पर चूज ए रोल, फिर APL 04 में जो ARN या CRN होगा वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। कैप्चा डालेंगे तो और सबमिट करेंगे तो कुछ डिटेल्स आएगा, फिर उसके अगेंस्ट आप अपील में फाइल कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, मुझे ढूंढना पड़ेगा। इट में फर्दर बी नोटेड दैट अपील्स बिफोर जीएसटी 80 अगेंस्ट एनी ऑर्डर ऑफ द अपीलेट और रिविजनल अथॉरिटी इन APL 04 दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड ऑन और आफ्टर 1 April 2026 shall have to be filed before the tribunal within 3 months. Appeal before the GST 18 case where appeal in APL 01 or 3 or notices are not available in the GSTN system. Yes, manual है तो for all the appeals filed before the appellate authority or notices of the revisional authority where the ARN CRN is not available in the GSTN system, the filing window will open from the midnight of 31st December 2025 and will expire on 30th June 2026. तो अगर manual order है तो आपको तब भी इसी पोर्टल के थ्रू ही करना पड़ेगा। Thus, users are strongly advised not to hurry since more than sufficient time has been provided for filing appeals before GST 80 wherever the orders in APL 04 have been issued on or before 31st March 2026. Okay. Getting started on the home page. Before you log in or register, you must complete these initial steps on the portal's main page. Download the offline draft filing Excel sheet. ये हमने डाउनलोड किया हुआ है। इसमें अब चेकलिस्ट देखिए, ऑर्डर डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, केस डिटेल्स, ये हम लोग करते हैं अभी थोड़ी देर में, वापस आते हैं उसी में। टू सेव टाइम एंड मिनिमाइज डेटा एंट्री एरर्स, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट द यूजर फर्स्ट डाउनलोड द ई-फाइल Excel sheet and file the details of the appeals in the Excel sheet. It may be noted that this Excel sheet is a replica of the filing portal and various tabs available thereon. Users are also advised to scan and save in a separate folder all documents, including the mandatory ones, pre-deposit calculation sheets, APL 04 were not available in the system, challan of appeal fee if not paid through GST 80 portal that they wish to upload in the appeal so that the same can be uploaded seamlessly and smoothly when they actually file the appeal. The documents to be uploaded must be in PDF and must not exceed the prescribed size of 20 MB per document. Benefit: this allows you to prepare all the necessary details along with documents required to be uploaded for filing of your appeal even before you log in. Once you log in, you can simply copy and paste the information field-wise from the completed sheet directly into the online form. Step 2. Select your role on the first page. Choose your drop-down taxpayer, tax officer, authorized representative. अच्छा, ये कह रहा है कि पहले आप शीट भर लीजिए, उसके बाद लॉग इन कीजिए। लॉग इन करते ही आपको यहाँ पर यू हैव टू सेलेक्ट द रोल। ओके, डन। ऑप्शन ऑफ चूजिंग दिस, choosing taxpayer is for filing while authorized representative option is available for registration and further action in relation to filing the to appeal. Outcome: the portal navigates to the appropriate page for online filing. Validate your filing slot. Due to the case staggering system, you must validate your eligibility to file. Okay, system ही आपको रोकेगा. Enter your ARN CRN of APL 01 or 03 in designated field on the home page. Outcome: the portal will verify if your case is scheduled for filing. If successful, you will be allowed to proceed to login or registration page. If unsuccessful, it means your slot is not currently active. Please refer to the staggering schedule for your designated filing period. Section 2, the e-filing and submission process. After your ARN CRN is successfully validated, you can proceed with the filing. Login and initial setup.
Okay. Login or register. Access the portal using your GSTN. New users must complete the registration process first. अब ये समझिए यही पोर्टल है, जब तक आपको ARN CRN वैलिड नहीं होगा तब तक ये आपको रजिस्ट्रेशन पेज में लेके ही नहीं जाएगा, यहीं से शुरुआत होगी. कंप्लीट द अपील फॉर्म. नेविगेट थ्रू ईच tab. Subsequently ensure all mandatory fields are completed accurately. Order details. ये टैब मतलब ये रहा ऑर्डर डिटेल्स बेसिक. तो ये एक्सेल शीट में है, ये हम लोग भी पढ़ लेते हैं. अपील फी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट, डिजिटल साइनिंग एंड फाइनल सबमिशन, एक्नॉलेजमेंट. इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू प्रोसीड विद कोर्ट फी पेमेंट टैब ओनली when all relevant data and supporting documents to the appeal are uploaded on the portal. Please fill the checklist by selecting the correct option available. Upon successful completion of all the above steps, a filing number shall be generated by the system, which can saved or downloaded will be communicated on your registered mobile and email ID. तो ये जो फाइलिंग नंबर है वो होगा पार्ट ए ऑफ GSTR 2A, पार्ट ए ऑफ APL 02A. अब एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है GST AT ई फाइलिंग पोर्टल. ये रहा, यहां पर आप एंटर करेंगे, फिर ये खुल जाएगा. जैसे ये एंटर करेंगे दिस रजिस्टर बटन विल ओपन. उसके बाद कॉज लिस्ट, केस स्टेटस और रजिस्ट्रेशन का सिस्टम दिया हुआ, टैक्स पेयर, टैक्स ऑफिसर, एनी अदर. ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन हमने कर लिया. ई फाइलिंग यूजर रजिस्ट्रेशन. ई फाइलिंग यूजर रजिस्ट्रेशन. ऑथराइज एडवोकेट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव एज एडवोकेट. वेलकम टू GST अपीलेट ट्रिब्यूनल. अब खुला. अब लॉगिन करेंगे आप यहां से, तो ये लॉगिन हो गया. लॉगिन के बाद यूजर लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, अनलॉक अकाउंट, एंटर यूजर आईडी, पासवर्ड, GST AT यूजर आईडी, GST अच्छा अलग से शुरू सेपरेट यूजर आईडी होगा. क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन. कंटिन्यू में जैसे ही आएंगे यूजर मस्ट सेलेक्ट चेक बॉक्स. ठीक है, डिस्क्लेमर ये सब हो गया. अगेन वंस द यूजर्स ओपन्स द ई फाइलिंग पेज, द यूजर विल हैव टू चूज द करेक्ट रोल एंड एंटर ARN CRN. तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद करेक्ट रोल चूज कर लीजिए. 159 पेज का है. एंटर यूजर आईडी, पासवर्ड, करेक्ट. अब यहां पर खुल जाएगा आपका वेलकम. ये आपका GST नंबर यहाँ लिखा होगा, 14 जनवरी 2025. ड्राफ्ट केसेस, पेमेंट ऑनलाइन, पेमेंट ऑफलाइन, ई फाइल्ड केसेस. अपेलेंट कॉर्नर, रेस्पोंडेंट कॉर्नर. रेस्पोंडेंट मतलब मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए माई अकाउंट, डाउनलोड ई साइन DSC टूल, लॉग आउट. फाइलिंग, अपील फाइलिंग. फिर सेलेक्ट फाइलिंग थ्रू ARN CRN नंबर. We declared that this is our first appeal in the impugned order before the tribunal and we have previously neither filed any appeal writ nor it is pending before any other लीगल फोरम इंक्लूडिंग हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट. ARN CRN अवेलेबल. क्लिक कीजिए. ये जो बेसिक डिटेल्स, केस डिटेल्स, अपीलेट डिटेल्स, यही एक्सेल शीट में भी है, तो इसको भी पढ़ेंगे हम लोग को समझ में आ जाएगा पूरा. GST AT डिक्लेरेशन कंफर्म, ये खुल गया. ऑर्डर डिटेल्स. इसके बाद तो मतलब हम लोग को एक्सेल शीट में जाएंगे तो ये ऑर्डर डिटेल्स, APL 01, अपीलेट नेम, अथॉरिटी टाइप, रिविजनल अथॉरिटी है या अपीलेट अथॉरिटी है, ये आपको सारा यहाँ पर यही डिटेल मिल जाएगा. तो ये हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सेल शीट में. यस, ये सारा वही डिटेल है, तो इसको हम लोग एक्सेल शीट में पढ़ लेते हैं. आइए एक्सेल शीट में एक चेकलिस्ट है. यहाँ दे आर आस्किंग कि ग्राउंड्स ऑफ अपील क्या है. हैज द ऑर्डर अपील अगेंस्ट हैज बीन, अच्छा ग्राउंड्स नहीं है, हैज बीन अपलोडेड विद अ सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी, yes or no. Has the order passed by the proper officer have been uploaded with self-certified copy, yes or no, या not applicable. Have the issues under dispute before the tribunal been clearly stated in the present appeal, यानी कि जो ग्राउंड्स ऑफ अपील आप बनाते हैं उसको आपने क्लियरली स्टेट किया है या नहीं किया. हैज अ समरी ऑफ द डिस्प्यूट बिफोर द ट्राइब्यूनल बीन प्रोवाइडेड इन द प्रेजेंट अपील. समरी ऑफ द डिस्प्यूट, जो ब्रीफ हम लोग बनाते हैं. Has a statement of facts regarding the dispute before the tribunal has been included in the present appeal? Have all uploaded documents been digitally signed by the person uploading them? ये कैसे possible है भाई? They are asking us to digitally signed. Have the fees specified in Rule 110 have been paid? यानी कि वो जो 5,000 रुपए की मिनिमम फीस है वो उसकी पेमेंट की बात कर रहा है. Has book marking pagination been done according to the index? तो आपको इंडेक्स पेज बनाना पड़ता है एक, जिसमें आप लिखते हैं कि साइन वाले में तो क्वेश्चन मार्क लिखा है ना कि है या नहीं, ये भी हो सकता है, नो या यस. हाँ, नॉट एप्लीकेबल भी हो सकता है. ठीक बात, ठीक बात. तो हैज बुक मार्किंग पेजिनेशन बीन डन अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स. हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बीन कलर स्कैन फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ओरिजिनल्स. तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए, कलर स्कैन होना चाहिए. या फिर नो लिख दीजिए. हैज द अपील बीन प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश. इफ एनी ऑर्डर, इसको मैं जूम कर दूं क्या?
नजर नहीं आ रहा। आर ऑल एफिडेविट्स प्रॉपरली अटेस्टेड एंड आइडेंटिफाइड? अच्छा ये रह गया। इफ एनी ऑर्डर नोटिस स्टेटमेंट और पास इन ए लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश हैज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन बीन अपलोडेड, तो इंग्लिश ही चाहिए। इफ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन हैज बीन अपलोडेड, हैज एन एफिडेविट कंफर्मिंग द एक्यूरेसी ऑफ ट्रांसलेशन बीन अपलोडेड बाय द appellant authorized representative translator, have the details of the appellate or regional authority been correctly and fully specified in the present appeal? Have any notices issued by the appellate authority been uploaded with a self-certified copy? Have any show cause notice or statement issued by the proper officer have been uploaded with the self-certified copy? Have the details of the officer authority who passed the order have been correctly specified, filled in the present appeal? Designation and office. Has the order been correctly and specified, filed in the present appeal? Has the required amount of pre-deposit as per this been made? यानी कि 10% पहले फिर 10% आप यानी कि 20%. Have all documents been uploaded with correct indexing in a single PDF? Single PDF मतलब जो भी PDF आप अपलोड करेंगे उसमें भी पेज नंबर होना चाहिए. Have all documents requiring the signature of the parties been physically signed, scanned or uploaded? Have all typewritten documents uploaded with the present appeal been typewritten on one side of A4 size paper with double spacing, justified horizontal aligning in the specified font and font size? मैं आपको बता देता हूं, ये फॉन्ट साइज के बारे में तो नहीं लिखा हुआ था। जीएसटी 80 में फॉन्ट साइज लिखा हुआ है, फॉन्ट नहीं लिखा हुआ है, A4 लिखा हुआ है। ये देखिए, डबल स्पेसिंग ऑन द A4 साइज पेपर, ड्यूली पेज इंडेक्स एंड टैग्ड फॉर्मली विद द फॉर्म ऑफ अपील इन ए सेपरेट फोल्डर। फॉन्ट नहीं लिखा हुआ है। और ये याद रखिएगा कि ये आपका डिफेक्टिव निकाल देगा अगर ये सब क्राइटेरिया फुलफिल्ड नहीं है तो। ये रहा स्पेसिफाइड फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज। अब हम टाइम्स न्यू रोमन ले लें, एरियल ले लें, कौन सा फॉन्ट साइज है कोर्ट का पता करना पड़ेगा। आर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंक्लोजर्स आर फुल्ली एंड प्रॉपरली स्कैन्ड इन A4 कलर विद स्पेसिफाइड DPI रिजोल्यूशन विद नो पेज मिसिंग? DPI रिजोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ कहीं पर? DPI ये भी नहीं लिखा हुआ, ये अलग से कुछ निकालेंगे इसका मतलब। इफ पेपर बुक्स आर इंक्लूडेड, आर दे प्रॉपरली पेजिनेटेड एंड इंडेक्स्ड? ऑल डॉक्यूमेंट्स एंक्लोजर्स आर फुल्ली एंड प्रॉपरली स्कैन्ड इन A4 पेपर एंड स्पेसिफाइड DPI रिजोल्यूशन दैट नो पेजेस आर मिसिंग? हैज प्रेजेंट अपील बीन फाइल्ड अंडर द करेक्ट कैटेगरी ऑफ केस एंड हैज द appropriate code been specified therein? Whether the amount of demand as per the present appeal is in accordance with the order passed by the appellate authority under section 107? Whether the amount admitted before the appellate authority under section 107 as declared in the present appeal is in accordance with the appeal filed before the said authority? Any other? So these are the checklist. अब हम लोग आते हैं ऑर्डर डिटेल्स। ऑर्डर डिटेल्स में क्या मांग रहा है? ऑर्डर अपील अगेंस्ट, तो रिविजनल का तो नहीं होगा सबका। ये देखिए, ये एक अच्छी बात ये है कि इसमें APL 04, APL 02 रिजेक्टेड भी है। दिस इज गुड। That we have discussed that thing, that even appeal 02 can, if it is rejected, can be challenged before the appellate tribunal. करेक्ट, तो ये अलाउ कर रहा है, दैट इज गुड। हाँ, तो क्या करें, रिमांड बैक करेगा, क्या करेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूं, जहां जहां डेट एक्सपायरी हो चुकी है और आपने अपील फाइल नहीं किया है, फाइल कर दीजिए, आप रिजेक्ट करने दीजिए, आपको कम से कम APL 02 तो मिल जाएगा। हाँ, तो रिमांड बैक करेंगे और क्या? रिजेक्ट करेंगे या कुछ भी करेंगे, बोले नहीं आप रिजेक्टेड, तो यहाँ कम से कम आप GST 80 में तो आ ही सकते हैं। अब 80 में चले जाएंगे तो 80 वाला बोलेगा आप ऐसा करो, मैं रिमांड बैक करता हूँ, उसको डिसाइड करना दो इश्यू। हाँ, वो रिमांड बैक कर देगा। ठीक बात है, ठीक बात। APL 01 अपेलेंट नेम, अथॉरिटी टाइप, एपेलेट अथॉरिटी और रिविजनल, दो ही अथॉरिटी है, ठीक है। एपेलेट रिविजनल अथॉरिटी डेजिग्नेशन तो ज्वाइंट कमिश्नर ने पास किया, एडिशनल कमिश्नर ने पास किया। एपेलेट रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर, कम्युनिकेशन डेट, डेट ऑफ ओरिजिनल एडजुडिकेशन ऑर्डर, तो ऑर्डर पास हुआ है 15 जुलाई को, लेकिन आपको कम्युनिकेट किया गया है 15 अगस्त को, तो ये 15 अगस्त वाली डेट हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं क्या क्या पॉसिबिलिटी है। डिटेल्ड ऑर्डर जो आपके ईमेल में दे देता है और समरी ऑर्डर अपलोड करता है पोर्टल में, तो डिटेल ऑर्डर की डेट और समरी ऑर्डर की डेट अलग अलग हो सकती है। मेरे पास एक आया हुआ है, डिटेल ऑर्डर में डेट है 25 अगस्त और समरी ऑर्डर जो अपलोड हुआ वो 3 सितंबर को अपलोड हुआ है। अब 3 सितंबर अगर अपलोड हुआ है तो अगर हम लोग विद इन 30 डेज टैक्स प्लस इंटरेस्ट जमा करवाते हैं तो क्या हम लोग का पेनल्टी कम होगा? वहां पर कम्युनिकेशन नहीं लिखा हुआ, वहां पर कुछ और लिखा हुआ। एक बार लेट अस सी, चेक इट। सर इसमें रिजेक्टेड का भी दे रहा है ना? हाँ, तब तो रिजेक्टेड का रिजेक्ट करवाइए फिर आप, और क्या। और जो सर अपील में गए नहीं उनके लिए 7 का तो नहीं ले रहा है कि ले रहा है? लेगा? DRC 07 नहीं लेगा, रिजेक्ट करवाइए, रिजेक्ट।
अच्छा 74(5). The person chargeable with tax before service of notice under this notice of service है, pay the amount of tax along with ये before notice है, 74(9) देखते हैं। The proper officer shall, after considering the representation if any made by person chargeable with tax, determine the amount of tax। 50% कब हो जाता है आपका, 25% कब हो जाता है। Where any person chargeable with tax under this pays the said tax along with interest and a penalty विद इन 30 days ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस लिखा हुआ है। सर एक पॉइंट यहाँ पे तो DRC 01 हो गया। सर आवाज नहीं आ रही है, ये क्या लिखा, ये रहा, विद इन इक्विवेलेंट टू 50% ऑफ सच टैक्स विद इन 30 days ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। तो हमारे केस में क्या हुआ, डिटेल ऑर्डर 25 अगस्त है, पोर्टल में अपलोड किया 3 सितंबर को, तो 3 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच का देखना है बस। सर एक आपकी आवाज नहीं आ रही है जिनेश जी, बहुत हल्की आ रही है। अभी आ रही है? नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है आप मोबाइल फोन 300 मीटर दूर रखा हुआ है। चलिए, अपलोड इम्प्यून्ड ऑर्डर। अच्छा, यहां पर ऑर्डर अपलोड करना पड़ेगा। अपलेट रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर नंबर, ऑर्डर टाइप में क्या है, रिफंड। अच्छा, डिमांड ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर, इन्फोर्समेंट ऑर्डर, रिकवरी ऑर्डर, अदर ऑर्डर। डिमांड ऑर्डर समझ में आ रहा है, रिफंड ऑर्डर, रजिस्ट्रेशन ऑर्डर भी समझ में आ रहा है। ये इन्फोर्समेंट ऑर्डर क्या होता है? गाड़ी पकड़ी 129 वाला। अच्छा, 129 129 वाला, ओके जाती है ना। ओके। और रिकवरी ऑर्डर 78-79 वाला है ना। अदर ऑर्डर में क्या आ जाएगा? यही वाला सर होगा अपना। ऑर्डर तो नहीं करते ना वो, तो सर्च और सीजर वाला तो ऑर्डर नहीं होता है कभी। आपकी आवाज कम आ रही है जिनेश जी। सर्च और सीजर का ऑर्डर नहीं होता है सर, सर्च एंड सीजर का ऑर्डर, वो नहीं आएगा। हाँ। ओके। अपलेट रिविजनल अथॉरिटी पास बाय, डेट ऑफ ऑर्डर, यहाँ क्या था फिर, ऑर्डर आईडी ऑफ ओरिजिनल एजुडिकेशन ऑर्डर, ठीक है, ये DRC 07 हो गया। यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्या, ये DRC 07 हो गया। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट फ्रॉम मार्केट वैल्यू ऑफ सीज गुड्स, ये क्या है, अपलेट रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर नंबर, इसका मतलब ये APL 04 या RVN वाला, डेट ऑफ ओरिजिनल एजुडिकेशन ऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ, ये भी DRC 07 हो गया, मतलब यहाँ लिख नहीं पाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ DRC 07, यहाँ भी DRC 07। लेकिन सर दोनों ऊपर का डिफरेंस और नीचे का डिफरेंस क्या है? ऊपर ऑर्डर नंबर लिखा है राइट साइड पे, APL 04 ऑब्लिक रिवीजन लिखा, नीचे ऑर्डर आईडी ऑफ ओरिजिनल एजुडिकेशन ऑर्डर, तो मतलब सेम ही हुआ ना। एक मिनट दिनेश जी, ये तो डेट ऑफ है DRC 07, ये DRC 07 का डेट और DRC 07 का ID। तो ऊपर क्या नंबर कौन सा है? कहाँ ऊपर? राइट साइड पे ऊपर जो नंबर लिखना है ऑर्डर नंबर, आईडी वाला ही नंबर रहेगा ना। ओके, ऑर्डर आईडी ऑफ ओरिजिनल नहीं, ये APL 04 का है, ये ऑर्डर नंबर APL 04 का, ये DRC 07 का है। ओके। अपेलेट अथॉरिटी डेट ऑफ ऑर्डर, ये भी अगेन APL 04 या RVN है। जहां अपेलेट या रिविजनल अथॉरिटी लिखा हुआ है, ये सेव हो जाएगा ना, हाँ, वहां APL 04 ऑब्लिक RVN है। अपेलेट रिविजनल अथॉरिटी ऑर्डर पास्ड बाय, तो ये भी आपको APL 04 के एकदम नीचे में जिसने साइन किया हुआ है नाम उनके साथ, वो लिखा होगा। करेक्ट सर, करेक्ट। तो ये अथॉरिटी टाइप जब मैं अपेलेट अथॉरिटी लिखता हूं, और इस अथॉरिटी का डेजिग्नेशन मैं यहां लिख रहा हूं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ये डेजिग्नेशन हमने यहां लिखा, और यहां मुझे लग रहा है नाम लिखने के लिए कह रहा है। यस सर, यस। आप सर फॉर्मूला है डेजिग्नेशन में आप लिखिए कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर। नहीं, डेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे। कहाँ? अपील रोड नंबर 9। हाँ, डेजिग्नेशन, हाँ तो ठीक है, वो तो पता लग ही जाएगा ना। हाँ, ठीक। हाँ, बख्शेटी जी क्या कह रहे थे आप? एक पुराना APL 04 मिला है 2021 का। अच्छा, भेजिए। यस। बेसिक डिटेल्स, सेलेक्ट एक्ट, CGST SGST सेलेक्ट कर लिया, केस टाइप अपील, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं आ रहा है। IGST करता हूं तो भी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेस करता हूं इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो मेरा अगर CGST यहाँ IGST सेलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। केस टाइप अपील, जुरिडिक्शन ऑफ द अपेलेट या रिविजनल अथॉरिटी, ओके, सेंटर या स्टेट, हैज द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन पास बाय कॉमन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, जो DGGI से शोकॉज नोटिस इशू होता है, उसमें कई सारे टैक्स पेयर्स अलग अलग जुरिडिक्शन के होते हैं, तो उसके लिए कॉमन एडजुडिकेशन अथॉरिटी बनाया हुआ है, याद होगा आपको। पेरेंटेज डिटेल्स क्या होता है? अच्छा छोड़िए, सेक्शन, यहाँ मैं IGST करता हूं तो सेक्शन चेंज हो जाएगा क्या? नहीं सर, तो 112 में तो आपको जाना ही अपील में।
ट्राइब्यूनल में। Okay. Does the appeal application involve any issue over which only the principal bench, अच्छा place of supply वाला issue, yes करेंगे तो यहाँ जी। IGST ऑटोमेटिकली आना चाहिए। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ CGST किया, यहाँ नो किया, और मैं यहाँ यस करूंगा तो यहाँ IGST आना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का अगर इशू है तो IGST ही एक्ट में आप चैलेंज करेंगे। ओनली प्रिंसिपल बेंच हैज द जुरिडिक्शन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजंस। मैं यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई लिख देता हूँ, है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई IGST, ये दो चीज तो होनी चाहिए। स्टेट जोन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी, सर इसमें ये डिस्प्यूट तो यही है ना सर कि ये प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको आप मानते हैं कि एसजीएसटी सीजीएसटी है, लेकिन वो डिपार्टमेंट बोलता है आईजीएसटी है, हम बोलते हैं नहीं एसजीएसटी सीजीएसटी है, मतलब दोनों हो करेक्ट करेक्ट। अपीलेट रिविजनल अथॉरिटी हु हैज पास द इम्प्यून्ड ऑर्डर, ये दोबारा वही पूछ रहा है, APL 04 या RVN में पता लगेगा। केस डिटेल, ग्राउंड्स ऑफ अपील इन ब्रीफ, यहाँ कैसे आएगा? नहीं यहाँ नजर नहीं आ रहा, वहां तो नजर आएगा पोर्टल में। ब्रीफ इश्यू ऑफ द केस अंडर डिस्प्यूट, प्रेयर, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स कहाँ लिख रहे हैं ये, कैटेगरी ऑफ केस अंडर डिस्प्यूट, ओके, सेलेक्ट GST सेक्शन, ओ नो, कितने लोग गलती करेंगे हैं। आप देखिए CGST का 2, 3, 4, 5, अगर जुरिडिक्शन का इशू है कि इसके पास पावर नहीं है तो 2, 3, 4, 5, 6 सेलेक्ट करेंगे। सप्लाई या लेवाई का इशू है तो 6, 7, 8, 9 सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पशन का इशू है तो 11 और 11A इशू करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई 12, 13। रजिस्ट्रेशन का इशू है तो 22, 23, और इनवॉइस के कारण पेनल्टी है तो इसमें 122। ये पूरा सेक्शन लिख दिया कि इन्होंने कुछ छोड़ा भी है सेक्शन को, CGST के पूरा ही लिख दिया। CGST का कोई सेक्शन नहीं छोड़ा इन्होंने, नहीं, हाँ कोई नहीं छोड़ा, पूरा 100, देखिए ना 174 तक आ तो गया। फिर IGST का पूरा सेक्शन इन्होंने उठा के लिख दिया और सेस का पूरा सेक्शन उठा के लिख दिया। फिर अब CGST रूल भी सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं, वो भी पूरा लिख दिया इन्होंने। वाह। अमाउंट इन्वॉल्व इन एक्चुअल्स, टू ऐड मोर कैटेगरी ऑफ केस, डुप्लीकेट रोज नंबर 12 एंड 17 बिलो। ठीक है, ये ऐड करते रहिए जितना सेक्शन ऐड करना है। Issue related to registration, revocation, denial, blocking, erroneous levy of penalty, levy of interest, classification dispute, any other. As per the order of the adjudicating authority, as per stand of appellant before authority. चाहते हैं कि नहीं हम लोग फाइल करें ट्राइब्यूनल में, तो पागल हो जाएंगे लोग। कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर अबाउट अपेलेंट, अच्छा ठीक है, फर्म है, कंपनी है। स्टैट्यूट अंडर विच इनकॉर्पोरेट, एड्रेस, एनी अदर रिलेवेंट फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, डिटेल ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, खैर ये तो इंपॉर्टेंट है ही। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट हिस्ट्री, रेफरेंस, ओके। अपेलेंट डिटेल्स, रेस्पोंडेंट, इसमें रेस्पोंडेंट नेम, अलग अलग रेस्पोंडेंट का मुझे लगता है एक से ज्यादा रेस्पोंडेंट भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। ऐड रिप्रेजेंटेटिव, डिमांड कंफर्म्ड, सेंट्रल टैक्स, स्टेट, IGST, सेस, बहुत बढ़िया। डिमांड एडमिटेड, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अपील, एफिडेविट, एनेक्चर, इम्प्यून्ड ऑर्डर, वकालतनामा, पेमेंट रिसीट, एनी अदर डॉक्यूमेंट, हायर कोर्ट और सेल्फ कैलकुलेशन सीट, condonation of delay. Complete.